میں ہوں آپ کے ساتھ سنا وارث. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ 9 اور ہیڈ لائنز کے بعد خبروں کی تفصیل. جنیوا سوئٹزرلینڈ میں سماجی اور سیاسی کارکن تسلیمہ اختر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 54ویں اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر یوٹی خطے کی بہتری کے لیے بدلاؤ لانے والی تبدیلیاں عمل میں لا رہا ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق اور سہولیات کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. وہاں کے لوگ حکومت پاکستان کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. جبکہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت خطے میں امن اور خوشحالی لانے کے علاوہ جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. پاکستان اپنی بنیادی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور دہشت گرد تنظیموں کو بھارت کے خلاف پراکسی جنگ چھیڑنے کے لیے ڈھال بنا رہا ہے. As President being a native to Jammu and Kashmir through UNHR Council, I would like to bring forth the static developmental differences of Union Territory of Jammu and Kashmir, that is JKUT and Pak occupied Jammu Kashmir. While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the Government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education sector in JKUT compared to its counterpart. POJK is facing a major crisis in its education sector, lacking basic infrastructure including building and roofs, clean water, toilets, etc., causing acute hardships to students, resulting in severe dropout ratio. Change is also perceptible in health sector. POJK of health UT are availing health benefits in even the remote areas with national health schemes, which is distant dream for the people of POJK. Government of India facilitates people of the Jammu and Kashmir with universal health insurance. Thank you, Ms. اور پاکستان دہشت گردی کی کھلے عام حمایت سے باز نہیں آ رہا ہے. پاکستان نے ناپاک حرکت کرتے ہوئے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ایک یادگار تقریب منعقد کی جس میں دہشت گرد شکیل جانباز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا, جو 4 ستمبر کو ریاسی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں ڈھیر کیا گیا تھا. وہ ایک مارشل آرٹ کا ماہر تھا اور اس کی ہلاکت سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک بڑی کامیابی رہی تھی. پاکستان نے اسے جموں خطے میں دہشت گردی کے پھر سے ریوائیول کے لیے بھیجا تھا. اس کی یادگار میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے کوچلی میں میموریل سروس کا انعقاد کیا گیا, جس میں دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے ہندوستان کو کھلی وارننگ دی گئی. دہشت گرد ونگ PAFF نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شکیل اس کے کیڈر کا تھا, لیکن یاد میں منعقد کی گئے پروگرام میں متعدد سینئر ISI اور پاکستانی آرمی کے افسران نے دہشت گردوں کے ساتھ شرکت کی, جہاں پر AK-47 اسالٹ رائفل کھلے عام لہرایا گیا. ادھر اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر فائق نے پاکستان کے دوغلے پن کو بے نقاب کیا. انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی کو پاکستان کی حمایت اور افغانستان میں پاکستانی مداخلت کو ایکسپوز کیا. I just wanted to respond to the remarks by the citizen and representative of Pakistan that I'm representing Afghanistan at this council and speaking the anguish and the misery of the people of Afghanistan who have suffered from the interference of countries that today play the double standard and on the one side show that they are victim of the terrorism and on the other side lobby and normalize and support another terrorist group in Afghanistan. غربت اور اقتصادی بحران کے شکار پاکستان کے بھکاری اب دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان سے باہر گرفتار کیے جانے والے 90% بھکاری پاکستان کے ہی ہوتے ہیں. یہ بھی ہے کہ سینٹ قائمہ کمیٹی اوورسیز نوشین یوسف, شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا.
आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ जराये के मुताबिक सीआरपीएफ कोबरा कमांडोज फोर्सेस की खास यूनिट जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है। जराये के मुताबिक कोबरा के 100 कमांडोज जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। जंगल और पहाड़ों में छुपकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले करने के तरीकों पर कोबरा नजर रख रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर ये कमांडोज वहां मौजूद फोर्सेस की मदद करेंगे। जंगल और गोरिल्ला वॉरफेयर की लड़ाई में इन कमांडोज को काफी महारत हासिल है। कुंजर के रेरम के मकाम पर मागाम गुलमर्ग हाईवे के बीचों बीच ऐसा जानलेवा सुराख यानी गहरा गड्ढा मौजूद है जिससे कभी भी किसी शख्स की जान दांव पर लग सकती है। इस हाईवे पर रोजाना हजारों की तादाद में सयाह गुलमर्ग जाते हैं, बल्कि आम राहगीरों का भी खासा रश होता है। सड़क पर इस गहरे गड्ढे को आज तक मुताल्लिका महकमे ने ठीक नहीं किया। जहां नाराबल से गुलमर्ग जाने वाले इस हाईवे पर G20 के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ताहम बीच हाईवे के इस गहरे गड्ढे को महकमा ठीक नहीं कर पाया। मकामी लोगों में महकमे आरएनबी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे ने महकमे आरएनबी टंगमा की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से फोन पर इस मामले को लेकर पूछा, जो आप सुन सकते हैं अब से कुछ देर बाद। उधर रेरम के मकाम पर जायजा लिया है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग हाईवे जो है, यानी मागाम से लेकर गुलमर्ग जो जाने वाली हाईवे है, यानी रेरम खोशीपुरा के नज़दीक में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये महकमे की लापरवाही है। और यहाँ इसी हाईवे पे एक बड़ा होल बन चुका है और इस हाईवे से हज़ारों लाखों की तादाद में जो सयाह है और दिन में हज़ारों की तादाद में जो टूरिस्ट्स है वो इसी हाईवे से गुलमर्ग जाते हैं और वापसी में श्रीनगर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा होल, कितना बड़ा गहरा गड्ढा यहाँ पे बन चुका है और कभी भी और किसी भी वक्त यहाँ पे जानलेवा हादसा हो सकता है। और अब तक अगर हम देखेंगे इसी रोड पे G20 को लेकर काफ़ी पैसा लगाया गया है, मैग्डमाइजेशन हुई है, मगर अब यहाँ पे ये होल हुआ है। और चाहे RNB हो, चाहे PMGSY हो या मुख्तलिफ इंतज़ामिया के लोग हैं, और इस होल की तरफ कोई निगाह नहीं पड़ी है और कभी भी ये जानलेवा साबित हो सकता है। और ज़रूरत है इस होल को बंद करने की, क्योंकि यहाँ से स्कूली तालिब इल्म जो है वो स्कूल जाते हैं, गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से गुजरती हैं, दिन में लाखों हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ निकलती हैं और काफ़ी भी जानलेवा साबित हो सकता है। और हमारे साथ यहाँ पे मुकामी है और ये बताएंगे कि कितनी मुश्किलात आपको आ रहे हैं। कितने दिनों से ये होल बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? रोड कितना बड़ा है पर ये होल बंद नहीं कर सकते हुकूमत। यहाँ पर देखिए, इस साइड दिखाइए ज़रा सर, इसको यहाँ से बंद किया गया है साइड से ब्रिज को, पर इस होल को ऐसे नज़रअंदाज किया गया है सर। हम क्या डिमांड है आपकी? मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूँ कि इसको होल को जल्द से जल्द बंद किया जाए। या बाशिंदगानी खोचूपुरा है, उन्होंने इनके नोटिस में भी लाया। इस वक्त भी आपने देखा कि बड़े बाल ये गाड़ी वाला बच गया यहाँ पे, इसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी और आगे इसने ये देखा, अगर ये ब्रेक नहीं लगाता तो इस वक्त भी हादसा हो सकता था। आज तक G20 भी हो गया, उन्होंने रिपेयरिंग भी की, नई चीज़ें इन्होंने की, कितना सारा पैसा आ गया, करोड़ों के मतलब अमाउंट में पैसा, मगर इस होल को ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बार हमने ये भी किया कि इसको सफ़ेद के डंडे हमने खड़ा कर दिए कि दूर से गाड़ी वालों को ये समझ आ जाए कि इधर ये गड्ढा है। आज तक किसी भी ने हमारी बात नहीं सुनी और ना इस चीज़ को इन्होंने मतलब ठीक किया। एक्चुअली ये सिर्फ वो एक स्पॉट नहीं है, ये हमारे 3 स्पॉट्स थे NTR पे। एक था मागाम में, दूसरा था माजामा में और तीसरा था ये रिरम वाला जी। इन तीनों का हमने टेकअप किया है। इसकी AAB अकॉर्ड हो चुकी है 60 लाख रुपीस की। अलबत्ता फंड्स अभी तक पूरे रिलीज नहीं हुए हैं ताकि हम टेंडर निकाल पाए। टेंडर पैसे इस वक्त रिलीज हो चुके हैं सिर्फ एक कलवर्ट के लिए, जिसका काम चल रहा है इस वक्त मागाम में जी। तो हो सकता है कि बाय मंडे वी आर रिवाइजिंग सबमिटिंग द रिवाइज्ड प्रोग्राम एज पर दिस रिशफल ऑर्डर ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन। तो होपफुली इन द नेक्स्ट वीक इफ वी विल गेट द मनी वी विल टेंडर इट आउट। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये जो मुकामी कह रहे हैं कि बहुत अरसे से यहाँ पे ये होल बना हुआ है और काफ़ी डेंजरस है और ये जानलेवा साबित हो सकता है, कभी भी कोई भी जानलेवा हादसा यहाँ हो सकता है। और इसलिए ज़रूरत है इंतज़ामिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और यहाँ जो रेरम और खोशीपुरा के बीच में जो गुलमर्ग हाईवे है उसमें यह होल बना है, इसको मरम्मत करने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है ताकि हादसे की नौबत ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर की अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
गोलाई से। पंडो में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडो तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान रहे, कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। खबर जिला पुलवामा से है। जिला पुलवामा का हांजन चंदपुरा इलाका आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पसमानदगी का शिकार है। हांजन चंदपुरा इलाके की अंदरूनी राब्ता सड़कों और गली कूचों की आज तक किसी किस्म की तजदीद व मरम्मत अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से अंदरूनी सड़कों और गली कूचों की हालत काफी खस्ता हो गई है। मामूली बारिशों के दौरान इन पर चलना काफी दुश्वार हो जाता है, जिसके सबब आम लोगों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग हाईवे जो है, यानी मागाम से लेकर गुलमर्ग जो जाने वाली हाईवे है, यानी रेरम खोशीपुरा के 35वीं यूजी सतह की वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए बांदीपुरा जिले की नुमाइंदगी करने वाली वॉलीबॉल टीम कुपवाड़ा के लिए रवाना हो गई है। टीम को 14 आरआर के कमांडिंग अफसर ने पद्मश्री फैसल अली ने की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर फैसल अली का कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि बांदीपुरा की टीम पूरे चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। तो 35वें यूटी सतह की वॉलीबॉल चैंपियनशिप के हवाले से आपको बता दें कि इस टीम को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। जिला बांदीपुरा की ये टीम है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरआर के कमांडिंग अफसर ने टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा की टीम जा रही है 35th यूटी लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो कुपवाड़ा में हो रही है, हमारी टीम आज यहाँ से निकली। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि इस बड़ी चैंपियनशिप में इनको मौका मिले, बड़े एथलीट्स के साथ इंटरेक्शन के साथ साथ कुछ स्किल्स डेवलप करके अब वापसी में इंशाल्लाह कुछ अच्छी एक्सपीरियंस लेके आएंगे और आने वाले दौर में हमारे डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा वॉलीबॉल को बड़ा फरोग मिलेगा। इस चीज से हम अपने बांदीपुरा को वॉलीबॉल में आगे बढ़ा सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी दी। गुलाम नबी आजाद ने मजार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दुआ के लिए आए हैं, आज सियासत पर बात नहीं करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो पूरे मुल्क और अहले वतन के लिए अमन की दुआ करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की दुआ करते हैं। गुलाम नबी आजाद से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने।
जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सर, आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर निजामुद्दीन तशरीफ लाए हैं, क्या कैसे देखते हैं आज का दिन का मैसेज क्या है? देखो, आज का दिन, कल का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत ही मुबारक है और सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं मिलाद की। पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं, भाई बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों, अल्लाह उन सब का की हिफाजत करे। जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, जो मजलूम हैं उनके जुल्म ख़त्म हो जाएं पूरी दुनिया से और हमारे मुल्क से भी, और हर तरह की मुसीबतों से हमें निजात मिले, यही दुआ आज हम करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो इनकाउंटर्स हुए हैं और कई चीजें हुई हैं। आज सियासत में नहीं करना चाहता हूँ। मिलाद के इस मुबारक दिन पे मुझे नहीं लगता है कि सियासत की कोई जगह है। पार्टी का 1 साल पूरा हुआ, कैसा रहा ये? अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को, अपने लीडरों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। कई तरह के इल्जाम पार्टी पर लगाते रहे कई लोग। आज मैंने कहा ना, आज कोई सियासत नहीं। दुआ करेंगे कि कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह करे कि कश्मीर के हालात और पूरे दुनिया के हालात ठीक हो जाएं और अमन शांति हमारे मुल्क में, दुनिया में अमन शांति का दौर दौरा हो। इंतखाबात फिर सियासत आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने अवाम को पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का दर्स दिया और कभी भी दहशत की तालीम नहीं दी। इस मौके पे अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से आप सबको हदियत तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। ये एक शानदार दौर का आगाज है। आपकी तशरीफ आवरी से दुनिया की सारी बुराइयां जो उरूज पर थी ये अक्सर इख्तिताम पजीर हुई। आपने अमन अमान, सुलह और शांति, सालिह सेहतमंद निज़ाम आयात और आला अखलाकी कदरों की आबियारी फरमाई और उसको आगे बढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न खौफ व दहशत को बढ़ाया और न ही दहशतगर्दी की हिमायत फरमाई। हक तो ये है कि आपकी ज़ात पाक से इंसानों की ज़ात ही नहीं बल्कि दरिंद परिंद, हैवानात जमादात रहमत बनकर उनसे फैज़याब हुए, बल्कि अमन सलामती की जिंदगी पाई। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं पुलवामा की खबर का। जिला पुलवामा का हांजन चंद्रपुरा इलाका आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में पसमानदगी का शिकार है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिससे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। हांजन चंद्रपुरा इलाके की अंदरूनी राब्ता सड़कों और गली कूचों की आज तक किसी किस्म की तजदीद और मरम्मत अमल में नहीं लाई गई है। तस्वीरों में आप स्कूली बच्चों को देख सकते हैं। स्कूली बच्चे इस सड़क से रोजाना स्कूल जाते हैं, उन्हें दुश्वारियां पेश आती हैं। इतनी हालत खस्ता अंदरूनी सड़कों की, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किस तरीके से गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुताल्लिका हुकाम से इस मसले को कई बार कहा जा रहा है मकामी लोगों की तरफ से कि उठाया गया, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। जनाब हांजन चंद्रपुर पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पे 1.5 किलोमीटर दूर जंगलस मज बसान कह तहसील पे 1.5 किलोमीटर दूर यह बिल्कुल बाजरस मज यह गांव, मगर अस वो पतम 15 वरी सख्ती तुलान, यानी शुमार कह गसान बुलाकस तम दपान है अस बजट गसान R&B तम दपान तुम गो बुलाकस पता गई ओतर R&B अन योर तो तमो कोर मौके तो दोप है तुम सा NOC ये बुलाक पे मे कर कम दोहस मज दिस मे तिम NOC अनित तो तमो दोप करो यह 2 दोहन अंदर 3 दोहन अंदर अंदर आज गो तथ 1.5 रेत गो तथ मे वन तुंद वसात सत अगर सोन यह मुश्किल आज हल ग खुदा सद पास तुंद वसात सत वात तुम गवर्नर साहबस तान तमिस पन्निस DC साहबस तान तो यह वात तुम यह मशे सान यह कोचन कर रूट टॉल तक जनाब तम असल रसूख वाल सोन बोजान मस्जिद पे न्यान क्या मस्जिद शरीफ कठन तक ग रब न बना अपर बचन स्कूल न बाकी कोर फिट तरी
اس خاجن چندپورہ جو گاؤں ہے یہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی پسماندگی کا شکار ہے. اگر دیکھا جائے کہ اس وقت ترقی یافتہ دور چل رہا ہے, کئی علاقوں میں پلوامہ میں اگر ہم دیکھیں گے سڑکوں کا جال تو بچھایا جا رہا ہے پوری طرح سے, چاہے R&B ہو یا رورل ڈیولپمنٹ ہو یا باقی محکمہ جات ہو, وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں. کئی علاقے ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو گاؤں ہے خاجن چندپورہ کا گاؤں ہے, یہاں پر ابھی بھی اس طریقے کا فقدان پایا جا رہا ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ اس گاؤں کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے, چاہے وہ محکمہ دیہی ترقیات ہو یا پھر R&B ڈپارٹمنٹ ہو, اور کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہو, چاہے اریگیشن ہو, باقی ہو, چاہے اریگیشن کنالز کی بات کی جائے یا اندرونی گلی کوچوں کی بات کی جائے یا رابطہ سڑکوں کی بات کی جائے, تو ان پہ تجدید و مرمت عمل میں لائی جائے تاکہ یہ گاؤں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو گاؤں ہے یہ آج کے اس دور میں کچھ بنیادی سہولیات سے محروم ہے, جس میں خاص کر جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے, اندرونی روڈ کنیکٹیوٹی ہے, اس کا مطلب خستہ حالی کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ R&B ہو یا رورل ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی باقی ڈپارٹمنٹ ہو, سرکاری محکمہ ہو, تو وہ اس گاؤں کی طرف توجہ دے تاکہ یہ گاؤں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. فی الحال خان خاجن چندپورہ پلوامہ.